أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الکہف کا یہ 10واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 12 آیتوں میں جن کا سلسلہ آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے اور 82 پہ ختم ہو رہا ہے. ان ساری کی ساری 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو سفر حضرت خضر کے ساتھ ہوا اس سفر کا جو اختتام ہے آخری جو مرحلہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزشتہ اتوار آپ کے سامنے گزر چکا ہے اور وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ اشارہ ملا کہ روح زمین پر ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی صفت بندے بھی ہیں جو بعض معلومات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منفرد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشتیاق کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں بھی ان سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علامت بتائی کہ وہ ملیں گے آپ کو وہاں جہاں 2 سمندروں کا سنگم ہو. اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھے, وہیں کہیں مچھلی غائب ہو جائے گی, وہیں پر آپ ہمارے اس بندے کو تلاش کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
अपने खादिम योशा इब्न नून को साथ लिया और उनके साथ मछली भी रख ली और चल पड़े। जंबील में मछली है, सफर जारी है। रिवायतों के मुताबिक तकरीबन 40 दिन का सफर हुआ और उस 40 दिन के सफर में मछली गायब नहीं हुई। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कुछ आराम का तकाजा था, जिसके लिए आपने एक चट्टान से पीठ लगाकर जरा सा सुस्ता लेने और कुछ देर आराम कर लेने का इरादा फरमाया और आंख लग गई। कुछ देर बाद आंख खुली, सफर जारी रहा, आगे बढ़ते चले गए। अच्छा खासा आगे बढ़ने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो खाने की चीजें हैं, ज़ादे राह है, उसको खोलो, कुछ खाने के लिए निकालो, हम थकन और भूख महसूस कर रहे हैं। तो उस वक्त खादिम को याद आया कि मछली तो गायब हो गई जो सामान में रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप जब आराम फरमा रहे थे तो एक अजीब और गरीब वाकया हुआ कि मछली में जान पड़ी, वो उछली कूदी और जमीन में सुरंग बनाती हुई अजीब और गरीब तरीके से समंदर तक निकल पड़ी। मैं ये वाकया आपको बताना चाहता था, लेकिन शैतान ने ऐसा भुला दिया और सफर की जल्दी और सफर की तैयारी उसमें हम ऐसे मगन हो गए कि आपको मैं ये वाकया नहीं बता सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, यही तो हम चाह रहे थे कि मछली कहाँ गायब होती है। लिहाजा फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, अब पैरों के निशान को निगाहों में रखते हुए वापस लौट कर आए कि बिल्कुल बेआईनी ही वही जगह पहुंचना है जहां की मछली गायब हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसी मकाम के करीब पहुंच गए जहां मछली गायब हुई थी, तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और बल्कि आपके खादिम ने भी देखा, फवजदा अब्दन मिन इबादिना, कि अल्लाह ताला के एक बंदे हैं जो हदीस शरीफ के मुताबिक चादर ओढ़कर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ सलाम करने वाला कौन चला आया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने कहा, मूसा इमरान के बेटे? तो कहा, हाँ मैं इमरान का बेटा मूसा हूँ। और उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में आपको काम करना है, आप यहाँ कैसे चले आए? बनी इसराइल के आप रसूल है ना? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं बनी इसराइल का रसूल, लेकिन आप ये बतलाइए कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं इमरान का बेटा हूँ? आपको ये कैसे पता चला कि मैं बनी इसराइल की जानिब मबूस हूँ, भेजा गया हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुमको ये कैसे पता चला कि अल्लाह का एक बंदा यहाँ है? जिस परवरदिगार ने तुमको ये बतलाया कि एक बंदा तुमको इस मकाम पे मिलेगा, उसी परवरदिगार ने मुझे ये बतलाया कि तुम मूसा इब्न इमरान हो, बनी इसराइल के मूसा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तारुफ के बाद ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ साथ लगा रहूं। क्यों? ताकि आपको अल्लाह ताला ने जो खास इल्म दे रखा है वो इल्म से मैं सीख सकूं। हिदायत की बातें हैं आपके पास, रुश्द है, अल्लाह ताला की रहनुमाई है और उससे मैं इस्तेफादा करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, इन्नका लन तस्ततिअ मअइय सबरा, आप हमारे साथ सब्र नहीं कर सकते, हमारी दुनिया दूसरी है, आपकी दुनिया दूसरी है। आप अल्लाह ताला की शरीयत के नुमाइंदे हैं, रसूल हैं, उसको नाफिज करना आपकी ड्यूटी, जिम्मेदारी। बात चीजें आपके लिए जरा ऐसी होंगी कि जिनका समझना दुश्वार होगा, आपको एतराज होगा। लिहाजा आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे एक इल्म मिला हुआ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, इल्म मिन लदुन्नी, जो इक्तिसाबी नहीं होता, कमाया हुआ नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से गैब से अता होता है, वो इल्म मिला हुआ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कुछ भी हो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैं कहा कि फिर ठीक है, अगर आप रहना चाहते हो तो शर्त ये है कि आप किसी चीज में आप सवाल नहीं करेंगे। फला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदित लका मिन्हु ज़िक्रा, आप सवाल नहीं करेंगे कि ये वाकया क्यों हुआ, ये आपने क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, ये आप नहीं पूछेंगे। आप खामोश रहेंगे, आप चलते रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मंजूर। लिहाजा शर्त मंजूर कर ली
اور حضرت خضر کے ساتھ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، چلتے چلے گئے، فانطلقا، یہ ہر دو فرد چلتے چلے گئے۔ اب حضرت یوشع ابن نون یا تو واپس ہو گئے یا پھر سفر میں ساتھ رہے، لیکن چونکہ اب وہ ایک خادم کی حیثیت سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر تذکرہ نہیں فرمایا۔ اب دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ کا۔ فانطلقا، دونوں چلتے رہے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ ضرورت پڑی کہ کشتی پہ سوار ہوں۔ اب سنگم پہ تو ہے ہی سمندر کے، لہذا دوسری طرف جانا ہے تو اس کے لیے کشتی پر بات کی، اور سفینہ بڑی کشتی کو کہتے ہیں۔ تو اس بڑی کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر۔ حضرت خضر نے پوچھا کہ اس پار جو ساحل ہے دوسری جانب، ہم کو اس پار پہنچانے کی تم کیا قیمت لوگے، کیا اجرت لوگے، کیا تمہارا مہنتانہ ہوگا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے۔ کہا کیوں پیسہ نہیں لوگے؟ کہا بہت بابرکت لگ رہے ہیں آپ لوگ، آپ ہماری کشتی میں بیٹھے، ہمارے لیے یہی بڑی کرم فرمائی ہوگی، آپ تشریف لائیے، ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے۔ بہت لاکھ سمجھایا لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا ہم آپ کو فری چھوڑیں گے، مفت چھوڑیں گے۔ لہذا یہ ہر دو سوار ہو گئے، حتی اذا رکبا، یہ دونوں کے دونوں سوار ہو گئے، فی السفینۃ، کشتی میں، اور کشتی چل پڑی، خرقھا، حضرت خضر نے ایک عجیب و غریب حرکت کی کہ اس کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا، خرق، اس میں سوراخ کر دیا، شگاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اخرقتھا، آپ نے اس میں شگاف کر دیا، اس کو توڑ دیا، لتغرق اہلھا، تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، کشتی والوں کو لے کر کشتی ڈوب جائے، اس کے لیے آپ نے کشتی کو عائدار کر دیا۔ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کشتی میں وہ بیچاروں نے تو ہم سے اجرت بھی نہیں لی، ان بیچاروں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، ہم کو فری بٹھایا اور ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اور آپ ان کی چیزیں کے بگاڑ رہے ہیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے نامناسب حرکت کی۔ امرن کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں کہ نامناسب آپ نے حرکت کی، غیر مناسب آپ نے حرکت کی، یہ حرکت آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے غلط حرکت کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا موقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں وہ شرط نہ رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرنا، لہذا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف جو ہوتا ہوا دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کریں گے لا محالہ۔ اسی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اعتراض میں حق جانب تھے، لیکن واقعہ کچھ اور ہونے والا تھا۔ اور یہ کشتی تھی دراصل 10 بھائیوں کی، جن کا عالم یہ تھا وہ بیچارے 5 کر کے ڈیوٹی کرتے تھے، 5 گھر پر رہتے تھے، 5 کشتی چلاتے، اور اس طرح سے وہ روٹی کماتے تھے، اور غریب لوگ تھے، آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کشتی کے ذریعے سے وہ کچھ کماتے تھے اور گزرے اوقات گزارا کرتی تھی۔ اور آپ سوچئے اس زمانے میں ایسے زبردست قسم کے ٹکٹ بھی نہیں رہے ہوں گے کہ اس سے ہزاروں کی آمدنی ہو جائے، بس کام چلتا تھا، لہذا وہ خستہ حال لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اور ان کی کشتی یہ عائدار ہو گئی، ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ وہ تو بھاگ دوڑ کر کے ان لوگوں نے کسی طرح اس میں کپڑا پڑا اس کے سوراخ بند کیا، ورنہ تو کشتی ڈوب جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ حرکت کیسے ہوئی۔ کشتی چلتی رہی، اور پھر لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد ساحل کے اس پار پہنچی، سب لوگ اتر گئے، حضرت موسیٰ حضرت خضر بھی اتر گئے۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے کشتی کو اعداد کیوں کیا، کشتی کو توڑ کیوں ڈالا، تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ خاموش نہیں رہ سکتے، اور آپ نے وعدہ تو کیا خاموشی کا، لہذا شرط ٹوٹی جا رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لا تؤاخذنی بما نسیت، دیکھیں میں جو بھول گیا ہوں اس پر میری پکڑ نہ کیجئے، میں بھول گیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کیا ہوا ہوں کہ کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی بیچ میں آبجیکشن نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا، یہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور جب ذہن سے بات نکل گئی
भूल चूक हो गई तो उस पर फिर मेरी आप गिरफ्त न करें। ये अल्लाह ताला का भी मामला है कि जब बंदा वाक़ईतन कोई चीज भूल जाता है तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। चुनांचे आपने ये रिवायत सुनी होगी कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि रोजेदार रोजे में है लेकिन इत्तेफाकन वो भूल गया, सचमुच भूल गया, भूलने की एक्टिंग न करे, वो सचमुच भूल गया और उसके बाद उसने भूल से कोई चीज खा ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रोजा बाकी रखो, रोजा जारी रखो, इफ्तार तक रोजा तुम्हारा पूरा हो जाएगा। सहाबा ने कहा ये तो खा लिया अल्लाह के रसूल उसने कुछ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अल्लाह की जियाफत है, वो अल्लाह ताला की जियाफत समझो उसको, क्योंकि भूल जाने पर इंसान कादिर नहीं है। लाज़मी बात है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान जिस चीज पर कादिर नहीं उस चीज पर अल्लाह ताला की जानिब से बास भी नहीं है। ये बंदों के सिलसिले में अल्लाह ताला की सहूलत। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेआईनी ही एक ही शरई मसले को बयान किया और ये इरशाद फरमाया कि ला तुआखिज़नी, आप मेरी पकड़ न करें, बिमा नसीतु, जो कुछ मैं भूल गया, वला तुल्हिकनी मिन अम्री उसरा, और मेरे मामले को सख्ती से आप न निपटे, बड़ी सख्ती आप न करें, थोड़ी नरमी करें, सहूलत के साथ आप निमट लें। लिहाजा हजरत खजीर ने कहा कि आपकी बात माकूल है, ठीक है आप भूल गए थे, जरा आइंदा ख्याल रखिए, चलिए आगे चलते हैं। चलते चले गए, थोड़ा सा आगे चले तो पहली जो बस्ती आई रिवायतों के मुताबिक वो समंदर जो मेडिटेरियन सी है उसको अगर आप पार करें तो मुल्क शाम की तरफ जब पहुंचेंगे तो पहली बस्ती जो साहिल पर पड़ती है वो इलिया की बस्ती है, आजकल जहाँ पे के अक़बा है। तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर पहुंच गए। फंतलका, और आगे चलते रहे हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फक़तला, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का है, गुलामन अरबी में गुलाम जो है वो लड़के को नाबालिग बच्चे को कहते हैं, उर्दू में गुलाम वो दूसरा बिल्कुल अलग मफहूम है। उर्दू में गुलाम के माने आजाद के मुकाबले में जो होता है वो तो गुलाम है, दुनिया का गुलाम है, वो फला का गुलाम है, यानी एक तरह से जिसको बंदा कहते हैं वो मफहूम में उर्दू में गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में हरगिज नहीं होता। अरबी में तो गुलाम के माने सिर्फ लड़का, यही तर्जुमा करना चाहिए। लिहाजा एक लड़के को देखा और वो लड़का खेल रहा था और लड़का बालिग भी नहीं था, नाबालिग था, छोटा था और किसी किस्म का कोई जुर्म भी नहीं किया, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। फ़क़तलहू, हज़रत खज़िर ने उसको कत्ल कर डाला। अब ये रिवायतें अलग अलग है कैसे कत्ल किया, उससे हमको लेना देना भी नहीं है। और उसके सर पे पत्थर से मारा या उसके नरखरे को दबा दिया, हलक घोट दिया, जो भी किया, बहरहाल उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया हजरत खजीर ने। हजरत खजीर ने जैसे ही कत्ल किया फ़क़तलहू क़ाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन कह पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो एतराज किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो हजरत खजीर के इस अमल पर शदीद रद्द अमल का मुजाहरा फरमाया, वो आपके लब लहजे से साबित है। क़ाल क़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्सिन लक़द जि'त शैअन नुकरा। ऐसा कंपैरिजन अल्फाज का बढ़ रहा है, जरा सा आप देखें, कहा क़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्सिन, आपने एक मासूम जान को बिना किसी गुनाह के कत्ल कर दिया। वो कातिल होता, दानी होता, समझ में आता, कुछ नहीं किया था, बिना किसी खता के, बिना किसी कसूर के आपने एक मासूम ज़कियतन, मासूम जिससे कोई गुनाह न हुआ हो, एक मासूम शख्स को, एक मासूम जान को आपने बिना किसी सबब के, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गुनाह के कत्ल कर दिया। लक़द जि'त शैअन नुकरा, आपने बहुत मुनकर, बहुत बड़ा गुनाह किया। नुकरन का लफ्ज अब इस्तेमाल किया। पिछली आयत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, लक़द जि'त शैअन इम्रा, नामुनासिब हरकत किया आपने, मुनासिब बात नहीं थी। कश्ती अच्छी खासी थी, चल रही थी, वो बेचारों ने हमारे साथ अच्छा मामला किया, हमको कश्ती में बगैर पैसों के सवार कराया, आपने कश्ती को तोड़ डाला, उसमें ऐब कर दिया, उसमें शगाफ कर दिया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इम्रन का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, लक़द जि'त शैअन नुकरा, आपने मुनकर गुनाह
नापसंदीदा अमल जिसको अकल कबूल नहीं करती, शरीयत कबूल नहीं करती, मुनकर का लफ्ज हम सुनते ही रहते हैं, यअमुरुना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर, दीन से जो चीज निकली हुई है, जो हराम है, नापसंदीदा, तो आपने बहुत बड़ा मुनकर कर दिया, बड़ा गुनाह कर दिया आपने कि एक अच्छे खासे बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत खदीर ने वही कहा, काला अलम वकुल लका इन्नका लन तस्ततिया माई सबरा, क्या आपसे मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। आपकी राह अलग है, मेरी राह अलग है, आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, आपकी ड्यूटी अलग है, मेरी ड्यूटी अलग है, आप ये अल्लाह ताला की जानिब से मामूर, मैं भी अल्लाह ताला की जानिब से मामूर, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग है। आप हमारे साथ नहीं रह सकेंगे, नहीं सह सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये तो दूसरी बार हो गया, जो शर्त का मैंने अपने ऊपर लुज़ूम कर लिया था, शर्त की पाबंदी का जो वादा किया था वो टूटा जा रहा है। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल चूक नहीं फरमाया, बल्कि ये इरशाद फरमाया, खत्म किस्सा, दोबारा गलती हुई, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा तो फला तुसाहिबनी, उसके बाद आप मुझे साथ ना रखें। अब अगर मैं कोई सवाल कर लूं तीसरी बार तो उसके बाद फिर मोहलत न दें, उसके बाद फिर आप मुझे साथ ना रखें, फला तुसाहिबनी, फिर आप मुझे साथ ना रखें, अलहदा कर दें। लक़द बलग़्त मिन लदुन्नी उज़रा, मेरी जानिब से जो माज़रत हो सकती थी और जितनी माज़रत को कबूल करना चाहिए था उतना आपने कर लिया। वाक़या ये है कि दो बार आपने नजरअंदाज किया, दो बार आप मोहलत दे रहे हैं, ये खासा है और ये एक हद तक हुज्जत पूरी हो चुकी है। अब अगर मैं सवाल करूं तो फिर इसके बाद मुझे हक नहीं रहता कि मैं आपके साथ रहूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ एतराफ किया। फंतलका, और आगे बढ़ गए, दोनों चल पड़े। इंतलका के माने होते चलना, चल पड़े, दोनों चल पड़े। हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा, धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक के बस्ती में पहुंच गए, आबादी में पहुंच गए, जहां पे के मकानात थे, मकानों के दरमियान पहुंच गए। इस्ततअमा, तो ऐसे मौके पे हरदो ने कहा कि भाई हमारे खाने का इंतजाम करो। ये पुराना उर्फ था, उर्फ माने रिवाज था पुराने जमाने में, जबकि होटलों का वजूद नहीं था। तो जमाने में रिवाज ये था कि मुसाफिर जिस बस्ती में पहुंचते थे वहां ऐलान करते थे, हम मुसाफिर हैं, हमारे खाने के लिए इंतजाम कीजिए। लिहाजा बस्ती वालों की ड्यूटी होती थी कि उनके खाने का इंतजाम कर दें। और इस्लाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसाफिरीन को 3 दिन का इख्तियार दिया और ये कहा 3 दिन वो खाना मांग सकते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद उनको या तो आगे बढ़ जाना चाहिए या अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। तो ये 3 दिन तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसाफिरों के लिए कि वो 3 दिन खाना तलब कर सकते हैं, चौथे दिन नहीं। उसको हमने 2 हरकतें की उर्दू में हमने उसका एक तो गलत तर्जुमा किया और यूं कहा कि 3 दिन के मेहमान, चौथे दिन के शैतान। ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है। इससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हरगिज़ नहीं इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन वो खाना मांग सकता है। दूसरी गलतफहमी क्या है? दूसरी गलतफहमी यह है कि हम ये समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो कि हमारे मेहमान हैं वो 3 दिन रहे, चौथे दिन चलते बने। नहीं, ये उनके लिए नहीं है, ये अजनबी मुसाफिरीन के लिए। आपके मेहमान है, आपका भाई आया हुआ है, आपका भतीजा आया हुआ है, आपका गहरा बड़ा दोस्त आपसे बेचारा मिलने के लिए आया हुआ है। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, 1 हफ्ता रहे, 2 हफ्ता रहे, महीना रहे, उसको आप नहीं बोल सकते 3 दिन हो गए आप चलते बनिए। ये अजनबियों के लिए ये हुक्म है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अगर आप सोचिए रेस्टोरेंट और होटल का कोई तसव्वुर नहीं, तो कोई अगर किसी बस्ती में आ जाए तो खाने के लिए घर वालों ही को इंतजाम करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर शक्ल ये होती थी कि ये अजनबी मुसाफिर ये कुछ न कुछ बदले में तोहफा दिया करते थे, अपने साथ जो सामान होता उसमें से कोई सामान बतौर तोहफा दिया करते थे, और अगर नहीं है तो वो माजरत करते थे। बहरहाल ये एक पुराना दस्तूर था जो इस होटलों के रिवाज के बाद और अब जो मौजूदा दौर में जगह जगह ढाबे और खाने पीने का इंतजाम हो गया, उसके बाद ये खत्म सा हो गया। तो ये उसी रिवाज के मुताबिक हजरत खज़र और हजरत मूसा दोनों ने कहा, इसका दावा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर दोनों ने कहा खाने का इंतजाम करो,
खाना तलब किया। ताम तो आप जानते हैं लफ्ज बहुत मशहूर है और आपके हर काट पे लिखा रहता है कि तनावुल ताम करें आप, तो ये ताम के माने खाने के होते हैं, लेकिन ये बाबे इस्तिफाल में जब जाता है, इस्तामा जब ये बन जाता है तो इसके माने होते हैं तलब करना। मगफिरत के माने आप जानते हैं, इस्तगफार जब हो जाता है तो उसके माने होते हैं मगफिरत तलब करना, चाहना। तो उन लोगों ने खाना तलब किया, तो बस्ती वाले बखील थे। अब मुफस्सिरीन ने तो इतना लिख दिया कि रोए जमीन पे सबसे बखीलों की वो बस्ती थी, वल्लाहु आलम। फअबौ युदय्यिफूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया जियाफत करने से, उन्होंने इनकार कर दिया बस्ती वालों ने खाने का बंदोबस्त करने से, और कहा ये सब अल्लाह ताला की हिकमतें चल रही हैं। अभी देखिए इसके जो अंदर राज है वो निखर के खुल के सामने आने वाले हैं। उन्होंने इनकार किया अय्युदय्यिफूहुमा, दोनों की जियाफत से, कहा आप दोनों की जियाफत नहीं करेंगे, खाने आने का इंतजाम नहीं कर सकते। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गिरा गुजरा के इतने बदतमीज लोग हैं गांव के कि हम खाना इनसे मांग रहे हैं, खाना देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि उस जमाने का रिवाज है, दस्तूर है। और अच्छे जो लोग हुआ करते थे उनका आलम ये होता था कि खाना लेके दौड़ते थे और मेहमानों को लेके लड़ते थे कि हमारे घर जाएंगे। और उसमें जो अच्छे लोग हुआ करते थे वो रात में, उस जमाने में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी ना, तो रात में अपने घर के सामने चूल्हा सुलगा के सोते थे कि अगर कोई भटकता हुआ काफिला है तो ये आग देखे और समझ जाए कि हमारे घर में खाना पका हुआ है, आ जाए, पड़ाव डाले, हमसे खाना खाए। ये तो वो नफ्सियात होती थी जिनके अंदर जियाफत होती है। जो बखील होते उनका आलम ये कि जिन लोगों को अल्लाह ने कश्ती के नाखुदा ने चेहरा देखते ही कहा कि आपका कश्ती में चल जाना खुद बरकत का बाइस है, हम आपसे एक पैसा न लेंगे, ऐसे बुजुर्गों को कितनी अल्लाह ताला की नूरानियत होगी इनके चेहरों पे, कैसी रूहानियत होगी, कैसी शख्सियतें होंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल और हजरत खज़िर जो उनके दर्जे हैं, जो अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत बयान की, उससे आप अंदाजा कर ही सकते हैं। इतने आवाज बंदे देखते ही इनको खिदमत करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम माफी चाहते हैं, हम जियाफत नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे मकानात से आगे बढ़े, और जब मकानात से आगे बढ़ने लगे, बस्ती के बाहर की तरफ पहुंचने लगे, फवजदा, तो हरदो ने देखा, क्या पाया, फवजदा फीहा जिदारा, एक दीवार को देखा, युरीदु अन यनक़ज़ा, जो गिरी जा रही है, गिरना चाहती है, बिल्कुल गिरने के करीब हो चुकी है, वो सीधा हो चुकी है और कुछ ही दिनों में वो गिर जाएगी और जमीन पर आ पड़ेगी। लिहाजा हजरत खज़िर ने फ़अक़ामहु, उसकी तामीर शुरू कर दी, उसको दोबारा ठीक ठाक करना शुरू कर दिया, मिट्टी लेके उसको गारा बनाकर उस दीवार को ठीक करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, आपने काम तो अच्छा किया, लेकिन आप चाहते तो इस पर मजदूरी तय कर लेते, मुआवजा तय कर लेते, और उनसे कहते कि रोटी का इंतजाम करो, हम ये दीवार बना देंगे। उनसे कहते कि आप इतने पैसों का इंतजाम करो, अशरफी दे दो, हमको एक दिनार दे दो, एक दिरहम दे दो, जो भी सिक्का उस वक्त चलता, हम उसके एवज ये दीवार बना देंगे। ये फ्री खिदमत आपने क्यों की, जबकि गांव के लोग ऐसे बखील के उन्होंने हमारी एक टाइम के खाने का, हमारे एक वक्त के खाने का इंतजाम नहीं किया। तो अब हजरत खज़िर सीधा सीधा क्या कहते हैं, हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनिक, ये हमारे और आपकी जुदाईगी का वक्त है। अब आप अलग, मैं अलग, हाज़ा फिराक़ु, ये जुदाईगी है, बैनी मेरे, वो बैनिक आपके दरमियान, यहाँ से हम जुदा, अलग अलग, अब हम साथ नहीं रह सकते। हाँ, इतना है, चलते चलते मैं आपको जरूर बतला दूंगा, जिन चीजों पर आप सब्र नहीं कर पाए उन चीजों की हकीकत को। तावील असलन कहते हैं किसी भी चीज की हकीकत को, लुब्बे लुबाब को, उसकी तह में जाने के बाद जो नतीजा होता है उसको कहते हैं। इसीलिए अरबी में ख्वाब की ताबीर के लिए भी तावील का लफ्ज आया, सूरह यूसुफ में उसकी तफसील गुजर चुकी। और इसीलिए शुरू में मुफस्सिरीन कुरान पाक की तशरीह को तफसीर नहीं कहा करते थे, तावील कहा करते थे। बाद में ये लफ्ज तफसीर ज्यादा मकबूल हो गया। चुनांचे अगर आप अरबी की सबसे पुरानी और मशहूर तफसीर उठा ले, इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह की, तो
तफसीर तबरी में आप देखेंगे तावील हाज़िहिल आया, इस आयत की तफसीर, लफ्ज़ तावील यूज करते हैं, वो तफसीर नहीं यूज करते। क्यों? तावील के माने होते हैं, आला यऊलु से लफ्ज बना है तय में जाना, तय में जाके नतीजा बरामद करना, यह है तावील का मफहूम। उर्दू में दरअसल तावील के माने दूसरे हो गए। उर्दू में दूसरे क्या हो गए? उर्दू में और उन्होंने अपनी गलत हरकत की तावील की, यानी गोया एक तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, गलत तौजीह की, ये मफहूम में आने लगा लफ्ज, लेकिन अरबी में ऐसा हरगिज नहीं है। मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि हमारे जहन साफ रहे कि कुरान पाक में जब लफ्ज तावील आया तो उसका मफहूम क्या है। मालम तस्तती अलैहि सबरा, मैं आपको बतलाऊंगा अभी कुछ देर में जिन चीजों पर आप सब्र नहीं कर सके उनकी हकीकत, सरबस्ता राज क्या क्या असरार थे जिसकी वजह से ये चीजें हुई। अजीब व गरीब चीजें थी, और ऐसी अजीब व गरीब चीजें थी कि पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मजमउल बहरैन, जहां दो समंदरों का संगम है वहां कहीं हमारा बंदा मिलेगा। इशारा कर दिया कि जैसे दो समंदर मिल रहे हैं वैसे ही खजीर और मूसा ये दोनों मिलेंगे। ये दोनों के दोनों इल्म का एक समंदर है, ये दोनों के दोनों आपस में मुलाकात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता में आपकी खिदमत में रख चुका हूं कि हर्दों का इल्म, जिसको हजरत खजीर ने तवज्जो दिलाई कि हर्दों का इल्म अल्लाह ताला के इल्म के सामने वो समंदर में से कतरे के एक जुज़ के बराबर भी नहीं है। ये अल्लाह ताला का इल्म, और इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा ये भी बस समझाने के लिए मिसाल दी गई क्योंकि समंदर की भी हद है और अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला के इल्म की कोई हद नहीं है। और अल्लाह ताला जो कुछ इल्म बंदों को इनायत फरमाता है वो इल्म अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में बहुत ही कम। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, बंदों जो तुमको इल्म दिया गया बहुत थोड़ा है, इसको समझने की कोशिश करो, गलतफहमी में न पड़ जाओ कि बहुत कुछ तुमने जान लिया, बहुत कम तुम जानते हो। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर ये दोनों की मुलाकात हुई। तीन वाकयात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पिछली जिंदगी से बहुत ही ज्यादा मरबूत है। पहला वाकया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तोड़ने पर एतराज किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एतराज करते हैं तो हजरत खजीर ये कहते हैं दिल ही दिल में कि तुमको कश्ती के डूब जाने का डर है मूसा, लेकिन तुम जो ताबूत में थे तो तुमको किसने बचाया था? तुम भी तो समंदर में थे, ताबूत में बंद करके तुमको डाल दिया गया था, तुमको किसने बचाया था? फिर आगे चले, अब लड़के को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा लक़द जि'ता शैअन नुकरा, मुनकर किया, आपने बड़ा गुनाह किया, गलत किया। तो दिल ही दिल में हजरत खजीर ने कहा मूसा जब घूसा मारा था उसको और टिप्टी मर गया था उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था जब आपके घूसे से टिप्टी मर गया था? वाकया आप जानते हैं ना, सूरतुल क़सस में तफसील के साथ अल्लाह ताला ने वो वाकया बयान फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त निकले, सब लोग आराम कर रहे थे, धूप का वक्त था और रास्ते खाली थे। तो दो शख्स को देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लड़ रहे हैं, एक इसराइली जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खानदान है और एक किप्ती जो फिरौन का खानदान है। फिरौन किप्ती खानदान का था। बहुत थोड़े से लोग मिस्र में किप्ती बाकी हैं और वो एक माइनॉरिटी की हैसियत से जीते हैं, बड़ी इनकी अहमियत है, बड़े रिजर्वेशंस है। तो ये फिरौन का खानदान था, ये दोनों लड़ रहे थे। किप्ती है कि घूसे घूसे मार रहा था बेचारे इसराइली को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या लड़ाई है? दूर करने के लिए, दोनों को बचाव करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। मान ही नहीं रहा है किप्ती, आगे बढ़ के मान रहा है। आपने कभी झगड़ों में देखा होगा बाज लोग ऐसे आउट हो जाते हैं, काबू में ही नहीं आते, लिहाजा वो मान ही नहीं रहा था, बढ़ के मारता जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक ही घूसा मारा उसको, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का घूसा इतना जबरदस्त था कि एक ही घूसे में उसका काम तमाम हो गया, ढेर हो गया, वहीं खत्म हो गया। बहुत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हुए, रो पड़े, दुआएं की। फिर इत्तला मिली कि उसके कत्ल के सिलसिले में फिरौन कातिल की तलाश में है और उसको सजा देने वाला है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात बस्ती से निकल गए, मदियन गए। फिर वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, 10 साल वहां रहे। तो ये सजा आई कि है मूसा, जब आपने घूसा मारा था, कत्ल हुआ था, तो वो
वो भी तो एक अल्लाह की हिकमत थी। फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये एतराज किया कि आप मजदूरी तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, आप बगैर पैसों के, बगैर मजदूरी के ये जो दीवार बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो उस पर यह आवाज आई कि ऐ मूसा, जिस वक्त आप मदियन पहुंचे थे और आपने बड़े बड़े डोल डालकर पानी निकालकर लड़कियों को देना शुरू किया था, उस वक्त उजरत क्यों नहीं तय की थी? उस वक्त उजरत क्यों नहीं तय की थी? ऐसी अजीब और गरीब मुनासिबत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 अजीम शान वाकयात से इन वाकयात की गर्ज के हजरत खदिर ने ये तीनों चीजें रखी। कहा देखिए ये तीनों चीजें आप भी तो अपनी जिंदगी में पूछ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सुनिए कि सब कुछ अल्लाह ताला की जानिब से होता है। अल्लाह ताला की हिकमत थी कि आपको बचाना और फिरौन के महल में आपकी तरबियत होना। तो अल्लाह ताला ने ताबूत को बचाया और कहाँ पहुंचाया? फिरौन के महल के पास पहुंचाया। वहां फिरौन की बेगम ने आपको उठाया और फिर उसके बाद से महल में आप पले बढ़े, महल में आप रहे, शहजादों की जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको इनायत फरमाई, जबकि आपके हमउम्र बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, काटा जा रहा था, शहीद किया जा रहा था। ऐसी अजीब गरीब हिकमत थी। आप देखिए दूसरी चीज ये कि आपके हाथ में कत्ल हुआ, उसके पीछे अल्लाह ताला की बड़ी जबरदस्त हिकमत थी। आपको बस्ती से निकालना था, फिरौन को ये बताना था कि ये आपका दुश्मन है, और ये बताना था कि बजाय इसके कि आप दुश्मन से लड़े झगड़ा करें, कुछ तुम नहीं कर सकोगे, और ये दुश्मन ही तुम्हारे दरबार में ऐलान नबूवत करेगा, रिसालत करेगा, तुमको सहना पड़ेगा। तुम अपने आप को ये कहते हो कि तुम बहुत बड़े खुदा हो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा परवरदिगार, ये पुकारते हो। देखो तुम कितने बेबस रहोगे कि तुम्हारे महल में एक, जिसको तुम्हारे अल्फाज में एक जुर्म करके गया हुआ, वो आकर ऐलान करेगा मैं रसूल हूं, तुम मेरी बात मानो, और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, कितने तुम मजबूर हो। ये अल्लाह ताला को बतलाना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हालात पैदा किए कि एक घूसे में उसका काम हो गया। और फिर ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक अच्छे ससुराल तक पहुंचाना था, हजरत शुएब के खानदान में निकाह होना था, उसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तारुफ होना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि सब चरवाहे वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और बढ़ बढ़ के पानी ले रहे हैं, अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। ये लोग घंटे 2 घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी गैरत की वजह से आगे बढ़ के उन सबको चीरा और बड़ा डोल पानी में डाला और पानी निकाला और उनसे कहा आप अपने घरों में ले लीजिए, आप अपनी बकरियों को पिला लीजिए, ये इसलिए कि एक तारुफ हो जाए। तो लड़कियों ने जाके हजरत शुएब से कहा कि एक बहुत ही अमानतदार, बहुत ताकतवर नौजवान, उन्होंने हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दिया। हजरत शुएब ने हजरत मूसा को बुलाया, वाकयात फिर होते चले गए, निकाह हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां 10 साल गुजारे। फिर उसके बाद नबूवत रिसालत के साथ मिस्र वापस आए। तो हिकमतें होती है अल्लाह ताला की जो पीछे काम कर रही होती, और बंदों की निगाहों से वो हिकमतें ओझल होती है। और मैं पूरे शऊर के साथ कह रहा हूँ, बंदे तो बंदे, बहुत ऊंचे दर्जे के बंदे, मकामात और दर्जात के एतबार से बड़े इल्म और तकवे वाले बंदे, बहुत तकवा फजल वाले बंदे, उनके निगाहों से भी ओझल होती है। अल्लाह ताला की हिकमतें नजर नहीं आती है, उसके असबाब होते हैं। लिहाजा आगे हजरत खदिर कहते हैं कि देखिए 3 हादसात हुए। पहला हादसा अम्म सफीना, कश्ती का, जिसको मैंने ऐबदार किया। फकानत लिमसाकिन, वो गरीबों की कश्ती थी, वो गरीब लोगों की कश्ती थी। 10 मजदूर थे जो बेचारे उस कश्ती के जरिए से रोजी रोटी का इंतजाम करते, खाने पीने का इंतजाम करते। और यामलून फिल बहर, वो बेचारे मजदूरी करते समंदर में। तो अरदतु अन अईबहा, मैंने इरादा किया कि उसमें आयत पैदा कर दूं। क्यों? वकाना वराअहु मलिक, पीछे पीछे उनके एक बादशाह चला आ रहा है। बुखारी शरीफ में उसका नाम आया हुदहुद इब्न बुदबुद। नाम सुन के भी पता चलता है बादशाह कितना बदमाश होगा। हुदहुद इब्न बुदबुद नाम का एक बादशाह, वो हुक्मरान, एक छोटे इलाके का वो राजा महाराजा रहा होगा। वो उसका आलम ये याखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा, हर अच्छी चीज को गस्ब करता था, अपने म्यूजियम में ले जाके, अपने महल में ले जाके रख लेता था। ये बादशाहों को ख्वाब तो रहता है कि अवाम में, अपने अवाम में कोई अच्छी चीज को गवारा नहीं करते, फौरन उसको अपने खजाने में जमा कर लेते हैं।
किसी जमाने में हैदराबाद में भी था, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाइए और बादशाह सलामत को बुलाइए तो वो कीमत देते थे, बिल्डिंग उनके नाम हो जाती थी। तो ये बादशाहों के सिलसिले में जरा सा बहुत मोहतात रहना पड़ता है। हर अच्छी चीज म्यूजियम में जमा कर लिया, खजाने में रख ली, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, चलता कर दिया। लिहाजा याखुज़ु कुल्ला सफ़ीनतिन, उस बादशाह की आदत यह है कि वो ले लेता है हर कश्ती को जो अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, गस्बन, गसब करके। गसब करना आप जानते हैं ना, जुल्म के साथ ले लेना, हक तरफी करते हुए ले लेना। लिहाजा वो गसब कर लेता है हर अच्छी चीज को। और ये कश्ती बड़ी अच्छी थी, अच्छी लकड़ियों से अच्छे अंदाज में मजबूत बनाई गई। लिहाजा उठाता, ले जाता, अपने महल के बाहर उसको उल्टा करके डाल देता। ये बेचारे तो मजदूरी से हाथ धो लेते, ये गरीब लोग जिनकी जरिए आमदनी ये तन्हा एक कश्ती है, ये जरिए आमदनी से हाथ धो लेते और इनकी मजदूरी खत्म हो जाती। लिहाजा इनको फाकों से गुजरना पड़ता और बड़ी मुसीबतें होती। क्योंकि जो रिवायतों में आता है तारीख की कि उन भाइयों का आदत ये था कि वो बेचारों में से बहुत सारे बाज मजबूरियों से भी दो चार थे। जैसे आता है एक की टांग नहीं थी, लंगड़े थे, एक के बारे में आता है कि पैदाइशी तौर पर नाबीना थे। और आप अंदाजा कीजिए उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले आमतौर पर बच्चों की पैदाइश पर ना वो टीके थे, ना वो मेडिकल का इंतजाम था, जिसकी वजह से आमतौर पर यह हुआ करता था कि किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया, बीमारी चली जाती थी चेचक की वजह से, लंगड़े हो जाते थे पोलियो की वजह से। तो इस तरह से रहा होगा कि वो 10 भाई थे, उसमें कुछ बीमारियां भी थी, कुछ परेशानियां भी थी। वो बेचारे एक कश्ती थी जिसके जरिए से कमा लेते। लिहाजा अब ये बादशाह सलामत ये कश्ती रसद कर जाएंगे तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैंने इसमें आयत पैदा कर दिया। आयतदार कश्ती, टूटी हुई कश्ती, कपड़ों से लकड़ी बंधी हुई है और रस्सियां बंधी हुई है, तो वो बादशाह सोचेगा ये थोड़ी लेने की कोई चीज है, लिहाजा उसको गसब नहीं करेगा और इनकी आमदनी जारी रहेगी, इनकी रोजी रोटी जारी रहेगी। ये अल्लाह ताला की जानिब से मुझे हुक्म था और मैंने ऐसा किया ताकि इनका जरिया आमदनी बाकी रहे। वामल गुलाम, और आगे देखिए, रहा लड़का फकाना अबवाहु मुमिनैन, उसके दोनों के दोनों वालिदैन, वालिद और वालिदा, माँ और बाप दोनों के दोनों मुमिनैन ईमान वाले हैं। ईमान की अहमियत अल्लाह ताला के पास गैर मामूली है। इस जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। ईमान की अहमियत कितनी है? ईमान की अहमियत इंसान की जिंदगी से ज्यादा, ईमान की अहमियत वतन से ज्यादा, ईमान की अहमियत दौलत से ज्यादा, ईमान की अहमियत औलाद से ज्यादा। क्योंकि ईमान है तो आपकी अबदी जिंदगी सही सलामत, ईमान नहीं है तो आखिरत की जिंदगी तबाह व बर्बाद। अल्लाह ताला की निगाहों में ईमान की बहुत बड़ी अहमियत, इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी अहमियत है कि हर नमाज में, हर रकात में उसको मांगते रहना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। छोड़ना नहीं, वली बन जाओ, खुद भी बन जाओ, ऊंचे से ऊंचे मकाम पे पहुंच जाओ, लेकिन ये अल्लाह ताला से ईमान पर साबित कदमी सिरात मुस्तकीम में मांगते रहना। लिहाजा ये दोनों वालिदैन ईमान वाले हैं। और ये लड़के का आलम ये है कि फखशीना युरिहिकुहुमा तुग़याना व कुफ्रा, ये लड़के के सिलसिले में अल्लाह ताला ने हजरत खजीर को इल्म दिया और उनको अंदेशा हुआ कि आगे चल के ये अपने इतना बड़ा बागी बनेगा, इतना बड़ा नाफरमान बनेगा कि आगे चल के अपने माँ बाप को भी युरिहिकुहुमा तुग़याना, नाफरमान बना देगा, वो कुफ्रा और कुफर में डाल देगा। औलाद कभी कभी माँ बाप के ईमान के खतरे का भी सबब बन जाती है। औलाद की वजह से कभी कभी माँ बाप अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। औलाद बिगड़ गई, औलाद धीरे धीरे कुफर की तरफ चली गई, फितने में पड़ गई। अब औलाद को बचाना है, औलाद को बचाने के लिए धीरे धीरे अपनी दीनदारी से भी फिर वो उन्होंने कम्प्रोमाइज कर लिया, विड्रा होते चले गए। और फिर कभी कभी इतना हो जाते हैं कि सारी दीनी कदरों को छोड़कर दुनियादारी में लग जाते हैं औलाद को निभाने में। और औलाद की बदकिरदारी को, उनके कुफ्र को, उनकी बेईमानी को सहने के लिए वो खुद भी उस माहौल में जा पड़ते हैं। तो 20 साल की इबादत, नमाज, रोजा, तकवा, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लिहाजा यही कैफियत बच्चे की थी, यही कैफियत उस बच्चे की थी। अब हजरत खजीर ने अल्लाह के हुक्म से क्या किया? फअरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़काता व अक़रबा रुहमा।
ارادہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بدل دے، پروردگار یبدلہما ربہما، ان کا رب یعنی اللہ تعالیٰ بدل دے خیرا منہ زکاۃ۔ پہلی بات، زکات کے معنی یہاں پہ تزکیے کے ہے، تربیت کے ہے۔ تزکیہ و تربیت یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، حرام کا ارتکاب نہ ہونا، بے ایمانی کی طرف نہ جانا، یعنی گویا ایک طرح سے حقوق اللہ ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ کہ پروردگار نے ارادہ فرمایا کہ تربیت کے اعتبار سے، تزکیے کے اعتبار سے بہت ہی تزکیے نفس کا حامل، نیک پاک نفس کا حامل۔ اور دوسری بات وَأَقْرَبَ رُحْمَ، رحم صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کرنا، خونی رشتے جو مادر رحم سے چلتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا۔ وَأَقْرَبَ رُحْمَ کے معنی ہے جو رشتہ داریوں کا خیال رکھنے والا، قرابت داروں کا خیال رکھنے والا اور رشتہ داریوں اور حقوق العباد سے بہت قریب تر ہوگا، یہ دو صفتیں ہوگی، ایسی اولاد اللہ تعالیٰ دے گا، بدل دے گا اس نافرمان لڑکے سے۔ سرکش اور جو باغی بننے والا ہے اس لڑکے سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے لڑکے کو، دوسری اولاد کو دے دے گا، وہ اولاد ہوگی زیادہ نیک، زیادہ متقی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اب بچے کا قتل ہوا، بچے کی لاش ماں باپ کو ملی، اب لاش ملی، کچھ کرتے تو نہیں، لہذا رو کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ہماری گود خالی ہو گئی، اے اللہ ہماری گود خالی ہو گئی، اے اللہ ہم کو ایک نیک لڑکا، ہم کو ایک نیک اولاد عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، لہذا اولاد بھی ایک روایت کے مطابق اس اولاد سے 7 نبی پیدا ہوئے، اس نسل سے پھر 7 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے۔ تو یہ دعاؤں کا اثر کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کام کر رہی کہ وہ اگر بڑا ہوتا ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دیتا، وہ اگر بڑا ہوتا ان کو سرکش بنا دیتا، ان کو بھی حرام میں مبتلا کر دیتا، وہ وفات پا گیا بچپن میں، وہ بیچارہ بھی جنت پہ چلا گیا، معصوم موت مرا، اور ماں باپ رو رو کے دعا کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو ایک اچھی اولاد ملی، وہ اولاد بڑھاپے میں ان کے لیے سہارا بنی، بڑھاپے میں ان کی خدمت کا ذریعہ بنی۔ اور یہ تو مادی زندگی، باقی ہے کہ ان کی نسل سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، کتنا اچھا سلسلہ چل پڑا۔ لہٰذا یہ عجیب و غریب سلسلہ، جب ماں باپ کا تقویٰ آگے ہو جا رہا ہے، ماں باپ کا تقویٰ ہوتا ہے اور ماں باپ کی عبادت ہوتی ہے، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے، تو پھر عرصے دراز تک اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اس کی سعادتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کر فجر سے پہلے ذرا سا بستی کی خبر گیری کرتے تھے کہ کہیں کوئی چور چکا تو نہیں آ گیا ہے، کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، معمول کے مطابق نکلے ہوئے تھے، ایک رخ پر گئے تو ایک گھر میں 2 خواتین کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ گھر ایسے نہیں ہوتے تھے جو آج کل کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، گھر کے معنی ہوتے تھے جھوپڑی، حجرے جس پہ پردے پڑے ہوئے، چھپر پڑا ہوا۔ لہذا آواز آ رہی تھی اور ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، آج گائے نے دودھ کم دیا ہے، آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا سا پانی ملا دو کیونکہ صبح بیچنا ہے، وہ بکے گا تو اس سے قیمت آئے گی، دن بھر کا کھانے پینے کا انتظام ہے۔ تو لڑکی نے کہا کہ امی جان یہ مناسب نہیں ہے، دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے، امیر المومنین کو معلوم ہوگا تو وہ سزا بھی دیں گے، انہوں نے آرڈیننس کر دیا ہے دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین یہاں اندھیرے میں کہاں چلے دیکھنے آ گئے، تو بیٹی نے کہا امیر المومنین چاہے آئے نہ آئے باپ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھٹکھٹایا اور اس کے بعد سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ تم لوگوں کو جب اتنی دقت ہے اور اتنی پریشانی ہے تو بیت المال میں درخواست دیتے، تمہارے لیے ہم پینشن کرتے، وظیفہ کرتے۔ دوسری بات یہ کہ اس لڑکی سے میں اپنے لڑکے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر دیا اس لڑکی سے اپنے فرزند کا۔ اسی نسل میں آگے چل کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اموی دور میں باغی حکومت کو، ملوکیت کو انہوں نے پھر خلافت کی طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کی۔ بیت المال میں پوری چیزیں جمع کر دی، محل کو خالی کر دیا،
फिर झोपड़ी में चले आए। अकल को हैरान करने वाली खिदमत अंजाम दी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। मुअर्रिखीन ने लिखा अगर पांचवें खलीफा कोई हो सकते हैं तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज, ये उसी नस्ल से पैदा हुए। तो माँ बाप की नेकियां, अफराद की नेकियां वो इतना काम आती है, इतना काम आती है, नस्लों उसकी बरकतें जाहिर होती रहती हैं। लिहाजा हज़रत खज़िर ने इस लड़के को खत्म कर दिया और माँ बाप ने बड़ी दुआएं की, बहुत सालेह औलाद हुई और उससे माँ बाप को भी आसरा मिला और आगे चल के नेकियों को भी तक़वियत मिली। वो अव्वल जिदार रही, तीसरी चीज दीवार, फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि, तो दो यतीम बच्चों की दीवार है फिल मदीनती, उस शहर में। वकाना तहतहु कंज़ुन लहुमा, अब शहर वालों को तो आपने देख लिया कि हमने खाना मांगा तो उन्होंने खाना देने से इनकार किया, लिहाजा उनकी नफ्सियात जहलते रहे। और वकाना तहतहु कंज़ुन लहुमा, उस दीवार के नीचे बच्चों के लिए कुछ जखीरा है, थोड़े बहुत पैसे वैसे जमा करके सोने के अशरफिया वगैरह पिछले जमाने में आम रिवाज था, जबकि तिजोरियों वगैरह लॉकर्स का सिस्टम नहीं था, तो किसी बर्तन में, घड़े वगैरह में इस तरह की रकम रख के उसको गले में डाल दिया जाता था और आमतौर पर निशानी रहे इसीलिए किसी दीवार वगैरह का इंतखाब करते। लिहाजा उस दीवार के नीचे कहा जाता है कंज़ुन लहुमा, ये दोनों का एक खजाना है, कुछ दौलत है। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिद बड़े नेक थे, इबादत गुजार थे। और अल्लाह ताला का आलम यह है वहुव यतवल्ला सालिहीन, वो सालिहीन का हमेशा काम बनाता रहता है। लिहाजा वालिद की नेकियों का अजर सवाब और वालिद की नेकियों की बरकत औलाद को भी मिलना है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। लिहाजा फ़अराद रब्बुका यब्लुगा, परवरदिगार ने इरादा फरमाया कि दोनों यब्लुगा अशुद्धहुमा, बालिग हो जाए, बड़े हो जाए, वयस्तखरिजा कंज़हुमा, अपने खजाने को पाले और निकाल ले। रहमतन मिन रब्बिक, ये आपके परवरदिगार की रहमत है और उसी रहमत की बुनियाद पर मुझे हुक्म हुआ कि मैं उस दीवार को तामीर कर दूं इतने दिनों के लिए कि और 2-4 साल दीवार बाकी रहे, बच्चे बड़े हो जाए, उसके बाद वो अपना खजाना निकाले, वरना ये बस्ती वाले बखील ये पूरा खजाना लूट लेंगे, यतीम मफलूकुल हाल रह जाएंगे, खस्ता हाल रह जाएंगे। और उनकी खबरगिरी करने वाला जो मुसाफिरीन को एक टाइम का खाना नहीं दिए, वो क्या यतीम की खबरगिरी करेंगे। लिहाजा ये यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं रह जाएगा। एक तरफ तो यतीमों के साथ शफकत करना है, दूसरी तरफ वो यतीम जिनके वालिदैन बड़े नेक थे, वालिद बड़े इबादत गुजार थे, ज़ुहद व तक़वा था, लिहाजा बाप की इबादतों का, बाप की नेकियों का, बाप के तक़वे का असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा और उसका नतीजा बरामद होगा और उसकी बरकत होगी कि अल्लाह ताला आने वाली नस्ल को भी सहारा देगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि अयब्लुगा अशुद्धहुमा, वो दोनों सिन्न बुलूग को पहुंच जाए, वयस्तखरिजा कंज़हुमा, वो दोनों अपने खजाने को पाले और निकाल ले। रहमतन मिन रब्बिक, ये परवरदिगार की मेहरबानी है। वमा फ़अलतुहु अन अम्री, मैंने कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं की, अपनी जानिब से, अपने दिल से मैंने नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था और अल्लाह ताला ने मुझे इन कामों पे मामूर किया था। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म की तावील में बदला रहा था। ज़ालिका तावीलु मा lam तस्ती अलैहि सबरा, ये है वो बातें जिस पे आप सब्र नहीं कर पाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवालात किए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मूसा सब्र कर जाते, अजीब अजीब हकीकतें हमारे सामने आती है। काश मूसा सब्र कर जाते कि अजीब अजीब हकीकतें हमारे सामने आती। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत पर मामूर थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। हजरत खज़िर वो उमूर तकवीनी के अंजाम देने पे मामूर थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी और दोनों का काम अलग अलग। मकसद ये है, अल्लाह ताला बताना चाहता है दो बातें। एक तो ये कि अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, हर काम के पीछे हिकमत होती है। लिहाजा जो हादिसात हो, जो वसाइल हो, जो परेशानियां हो, जो भी आजमाइशें पेश आए, उस पर सब्र करना चाहिए और समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसके पीछे कोई ना कोई खैर का पहलू रखा हो। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, आसा अन तकरहू शैअ व हुव खैरुल लकुम, बात चीजें तुम बहुत नापसंद कर रहे हो, लेकिन बहुत मुमकिन है उसी के पीछे तुम्हारे लिए खैर हो, भलाई हो, फायदा हो, उसी में तुम्हारा फायदा हो। लिहाजा अल्लाह ताला की हिकमतों पर ईमान, यकीन, एक बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला के नजदीक ईमान की इतनी है
اتنی اہمیت کہ ایمان کے لیے ایک بچے کا قتل ہوا، ایمان اور نیکی کی وجہ سے یتیموں کو ان کا خزانہ مل رہا ہے، اور یتیموں کو ان کا خزانہ نصیب مل رہا ہے، بلکہ ایک نبی کو لے کر ایک خضر جیسی برگزیدہ شخصیت ان کی خدمت کر رہی ہے، دیوار بنا رہی ہے. تو یہ ایمان کی اہمیت ہے، یہ روحانیت کی اہمیت ہے. ہر چیز مادیت میں نہیں ہے. مادیت اور دنیا داری یہ انسان کے لیے ضرورت بھر زندگی گزارنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اسی کے پیچھے اس کو دیوانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی روح کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، میں رخصت تو ہوتا ہوں، لیکن اب جب میں رخصت ہو رہا ہوں تو کچھ آپ مجھ سے نصیحت کیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے. اوصی نہیں کہا، کوئی وصیت کر دیجئے چلتے چلتے زیادہ راہ میں اب راستے میں آپ کی نصیحت لے کر چلو. تو حضرت خضر نے ان سے کہا کہ لا تعب علی الخطائین وکن علی خطیئتک من البکائین. دوسروں کی غلطیوں پر عیب نہ نکالا کریں اور اپنی غلطیوں پر رویا کریں. یہ اگر حضرت خضر کی نصیحت ہم سن لیں تو شاید ہمارے اندر سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، وحدت وجود پا جائے. مسئلہ پورا یہی ہے، دوسروں کی غلطیاں نکالنا، اپنی غلطیوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال دینا اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑنا سراسر اسلام کے خلاف ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے جتنا ہو سکے دوسروں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو، جتنا ہو سکے دوسروں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو، اور اپنی غلطیوں پہ خوب سے خوب نادم ہوتے رہو، گن گن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے اس پہ توبہ کرتے رہو. تو فرمایا حضرت خضر نے کہ جاتے جاتے حضرت ایک چھوٹی سی نصیحت ہے آپ کی خدمت میں. نصیحت کے معنی مشورہ ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے نبی کو کیسے نصیحت کی گئی، بلکہ خیر خواہی کی بات کو نصیحت کہتے ہیں عربی میں، کہ لا تعب علی الخطائین وَكُنْ لِخَطِئَتِكَ مِنَ التَّوَّابِينَ. دوسروں کی خطاؤں پر عیب نہ لگائے آپ، اور اپنی خطا پر توبہ کرتے رہے، روتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صلاحیت دے کے مجھ سے رجوع کرتے رہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.